Yes, very good morning. Hope you all had a wonderful weekend. Right. So we had learned about checks, bearer, order, and cross check. I received a lot of homework from y'all, y'all had done the currencies, and then some few students had prepared the check, some had sent me a challan. So very good, keep it up, all of you. Baby Shaji and what to say, Anjali Soni, Preeti, and Sadhana. There were a lot of students. Sorry if I've not taken anyone's name. You can just type in the chat box that I also sent because whatever names I could recollect, I am just telling you. Okay. Right. So good. Good job. Keep it up, all of you. Keep practicing. Yes. Yeah. Good morning. Good morning, everybody. Yeah. Let's go. We'll have a quick recap and we'll proceed further. Right. Quick recap is the bearer check person who presents at the bank counter and it is unsafe. दिस इज वन पॉइंट दिस इज वन पॉइंट ओके जो बैंक में ये बैरर चेक यहाँ पे बैरर करके मैंने यहाँ पे कर दिया तो आपको यू विल हैव the bearer. You no need to mention any name, no need to cross. You just tick bearer and whatever the amount is, you fill and you send it. It is little unsafe because anyone can go and encash the check. Okay. Now order check means I will specifically mention someone's name. Okay, whoever is issuing the check, they will mention the name. If I mention one name, that person will have to give an ID proof and will have to go to the bank and encash it. It is little bit safer than the bearer check, but it's not completely safe because kindly mute everybody, Karthik sir. Yeah. So it is not completely safe, but safer than the bearer check. So you can easily go and take your ID and then you can encash it. Next comes the cross check. You want me to write and show because we've already done this. Then next comes the cross check. Cross check means you'll simply put two parallel lines on the end of this left hand or you'll write account payee. Okay? Account payee, you will write it over there. Even if you don't write, it is understood only the payee will receive. Whosoever name, and this name should be proper spelling. If my name is SONI, if you put Y, the check will bounce because the name is not proper. Even the initial, if it is J, you should write J only. अगर और कुछ लिख दिया तो check bounce हो जाएगा. So the name is very, very important. Spelling is important and you should not overwrite it. ऐसे सोनी लिख के वापस यहाँ पे ऐसे करके फिर वापस ये बराबर ऐसे तो ओवरराइट नहीं करना है. ओके. एंड मैंने ये भी देखा था बहुत लोग ने यहाँ पर आई हैव टोल्ड स्पेसिफिकली सपोजिंग आप 5855 ऐसे ऐसे लिख रहे अमाउंट तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ नहीं देने का. मैं इधर और एक जीरो ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा और यहाँ पे मैंने रुपीस ही नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा. सो So always make sure you finish it with this symbol. Always ऐसे एक लकीर मार दीजिए ताकि इसके बाद में और यहाँ पर भी एक जगह मत छोड़िए ताकि यहाँ पर एक या दो ऐड किया जाए. तो कभी कभी जो फ्रॉड करना चाहता है वो बहुत करते हैं. सबका क्या बोल जुगाड़ निकाल देते हैं. ओके. सो डोंट अलाउ space over here in the front also in the back also. Always cross your check like this. ओके. सेम आप बोलोगे मेरा तो पैसा ही नहीं रहता इतना, मेरे को तो टेंशन ही नहीं है करने का, मेरे अकाउंट में हमेशा 2000 ही रहता है, कुछ टेंशन नहीं है. बात टेंशन की नहीं है कि आपका पैसा चला जाएगा. बाद अगर चेक बाउंस हो गया तो आपको भी पेनाल्टी लगेगी और उनको दोनों को अलग अलग बैंक में अलग अलग रेट रहता है. दोनों को खाली पीली 300-400 रुपया भरना पड़ेगा. तो पेनाल्टी लगती है चेक बाउंस के लिए भी. ऐसे ही मजाक नहीं है चेक बाउंस हो गया करके. Okay, so the check might get bounced if you don't have insufficient funds. मैंने सिखाया था आपको कि आपके बैंक में funds insufficient है, इसीलिए आपका पैसा चेक रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया. Right? Clear? So over here also, after writing over here 5855.
ओनली, ऐसा वर्ड, ये ओनली वर्ड लिखना है। इसका मतलब यही है कि इतना ही पैसा है। ओनली मिस इम्पोर्टेंट, यू शुड मेंशन। ओके। सो ये भी बहुत लोग ने लिखा नहीं था ओनली, और यहाँ पर भी बहुत लोग ने लिखा नहीं था, तो वो मिस मत कीजिए। सो आई थिंक सो, इट कैन बी, can't be encashed at counter, only be credited to pay's account। ओके, इसका मतलब क्या है? काउंटर पर एनकैश नहीं हो सकता है, पेई के अकाउंट में ही क्रेडिट हो सकता है। ओके, क्लियर? This one, only the person whose name is mentioned, it is safer than, now this one is safe। यहाँ पर ऊपर लिखा है, जगह नीचे नहीं है करके। तो I am every day taking for you the lessons, and then the next day I am giving you a recap with the differentiation between all this, so it will easily understood। I hope everyone is able to easily understand now the difference. Clear? Shall I go to the next? Yes or no? If oh, yes, please give me a thumbs up so that I can proceed further. If you have any doubts in this, you can type in the chat box. Yes. So yeah, we go to the next. What are we going to do next? So yes, Jyoti Kumari says yes, she is able to understand. So next is, we are going to see is, the fourth one is post-dated checks. Yes. Now, already previous class, I had told you whatever date, if I mention over here, 0504/2024, सो 5 तारीख को ही, 5th को ही आप चेक डाल सकते हैं, और 5th के बाद कभी भी। तो ये भी एक काइंड का पीडीसी चेक, क्योंकि अभी तक 5 तारीख आई नहीं है ना, so still 5th has not come, so even this can be considered as a pdc check। but post-dated checks are useful for purchasing, like say before and all। आजकल तो आपको बहुत सारे फाइनेंस कंपनी आ गए हैं, मगर प्रीवियसली क्या होता था, पोस्ट डेटेड चेक्स ना, मान लीजिए कि मैं एक बाइक खरीद रही हूँ, तो वो एक 60,000 की है, तो व्हाट हैपेंस, आई विल गिव पीडीसी चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स। पोस्ट डेटेड चेक्स हर महीने का मैं एक चेक, ऐसा चेक लीव्स होते हैं, पहले सब चेक लीव्स, 10 चेक लीव या 12, आपका जितना भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, आपको मान लीजिए 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 5,5 हजार रुपए का मैं, 5,000 रुपीज का मैं चेक है ना, हर महीने का मैं एक चेक लिख के दूंगी यहाँ पे। पांचवा महीना, छठा महीना, वही तारीख पर छठा महीना, यहाँ पे महीना सिर्फ हर चेक में बदलेगा। So the check will change, the amount, the month will be keep changing। So over here 5th month, 6th month, 7th month, बाकी सब भी जो भी है, हर महीने का किस्ता जो है, इंस्टॉलमेंट है आपका सेम रहेगा। तो ऐसा ही होता है पीडीसी चेक। मगर आजकल व्हाट हैपन, finance company like Bajaj and lot of other companies are there, where they what they do is, they take up the what to say, um, loan, they get you the loan, they will pay for, मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन या बाइक ले ली, तो बजाज जो फाइनेंस कंपनी है, वो 60,000 वो जो आउटलेट को है भर देगा। they will pay the money for that to that outlet for that product you have received, I mean you have bought it, and monthly you have to pay to Bajaj। Okay, so nowadays online is there, so no one gives PDC checks. Okay, but you should know about this also. That's why I'm giving you. Okay, clear? Any doubt regarding PDC checks? Post dated checks. Yes, correct. Okay, I got a clearance. Right. Then next, what can we go for? The other thing is stale check. Now, what is the stale check? Stale to ही खराब, meaning क्या है? खराब। तो इसका मतलब है कि 90 days, मैंने बोला था आपको 3 months तक ही एक चेक वैलिड है, ओनली फॉर 3 months अ चेक इज वैलिड। सो आफ्टर 90 days इफ यू गो एंड प्रोड्यूस इट टू द बैंक, you cannot encash it, you can't encash it, right? You cannot deposit it, because it is already 90 days, so that is why it is called as stale check। Okay, so they will dishonor। Okay, stale check, that is after 90 days you are presenting it।
ओके, नेक्स्ट, shall I go for the next? सेल्फ चेक। यहाँ पर आप एक, यहाँ पर अपना कुछ भी अपना नाम भी नहीं लिख के सेल्फ, या सेल्फ भी लिख सकते हो, ओनली सेल्फ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप सेल्फ करके लिखोगे। क्यों लिखोगे भाई? मेरा पैसा है, मैं ही निकालूंगी ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव यू, सी डेफिनेशन पढ़ना है तो मैं फटाफट लिख सकती हूँ, मगर आपको सिनारियो समझाऊंगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर बेटर। नाउ सेल्फ चेक जो रीजन के लिए दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक में आपको विड्रॉ करना है, आपको विड्रॉ करना है, मगर कोई कोई बैंक में विड्रॉल स्लिप का लिमिट होता है। Nowadays ATM is there, so no issues, but ATM also has some limit, right? Everyone has different limit, 20,000, 40,000, 50,000, everyone has। पर्सन चेक, प्रीति क्या बोलना चाह रहे हैं पर्सन चेक करके? इन पर्सन बोलना चाह रहे हैं आप? चेक का ओके। सो विड्रॉवल स्लिप का लिमिट होता है जी, मान लीजिए मेरे बैंक में विड्रॉवल स्लिप सिर्फ 25,000 तक की मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। तो मुझे बैंक में बोलेंगे कि आप एक चेक दे दीजिए सेल्फ का, तो आपको आपका पैसा आप निकाल सकते हो। Clear? So my limit for withdrawal slip is only 25,000. So they will not accept 50,000 and all amount in withdrawal slip. कि आपने विड्रॉल स्लिप में 50,000 भर दिया और बोलेंगे मुझे पैसा दो, तो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर आपको एक चेक बनाना पड़ेगा यहाँ पे अभी, 50,000, 50,000 करके, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, ओनली, ओके, 50,000 ओनली करके मैंने भर के मेरा साइन करूंगी। और सेल्फ चेक में पीछे भी, बैक साइड भी आपको एक साइन करना, टेस्ट करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। ओके, साइन कर यहाँ भी करना पड़ता है, और यहाँ पे क्रॉस नहीं करोगे सेल्फ चेक में। ओके, क्योंकि आप आपके लिए ही, तो ये जो पैसा है ऑन ऑन काउंटर एनकैश कर सकते हो। नहीं, आपको बोलते हैं मुझे एक 50,000 की एफडी खोलना है, मेरे खाते में अभी सेविंग्स में 50,000 जमा हो गया, मुझे एफडी खोलना है, तो आप सिर्फ ये भर के दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे ये इसका एफडी बना देंगे। आपके हाथ में कैश नहीं देंगे, ये एफडी के फॉर्म के साथ पंच करके या स्टेपल करके रख देंगे, और आपका 50,000 रुपया एफडी आपको हो जाएगा। यू कैन डू दैट ऑल्सो। क्लियर? मगर विड्रॉल तो दिखाना पड़ेगा ना, आपको एफडी डालना है तो 50,000 रुपया वापस कैश लेके देने की जरूरत नहीं है, कि वही बैंक में अगर आप एफडी करने वाले हो तो दैट ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर? एनी डाउट इन सेल्फ चेक? You will not cross your self check. You will have to sign over here also. On the back side also you have to sign. Okay? Clear? Shall I go to the next? Any doubt in self check? सेल्फ चेक लिमिटेड एडिशन मनी, लिमिटेड एडिशन मनी नहीं बोलने का बेटा, लिमिटेड, या सेल्फ चेक में लिमिटेड कितना मनी होता है, एवरीथिंग जो भी लिमिटेशन है, पीरियड हो या मनी हो, हर बैंक में वेरी होता है। कोई कोई बैंक में विड्रॉल स्लिप में 50,000 भी दे देंगे होंगे, कोई कोई बैंक में नहीं होता है, तो उनको चेक बनाना पड़ता है। सो दैट एंड ऑल डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, दैट यू हैव टू सी इन विच बैंक यू आर देयर, सो यू विल नो इट। ओके, आपके अकाउंट में पैसा है तो उसमें लिमिट की क्या बात है? आपके पास 1 लाख हो अकाउंट में, तो आप सेल्फ में करके 1 लाख बोल के आप निकाल सकते हो। ओके, राइट, shall we go to the next? Is it clear? If it's clear, say okay or give me a thumbs up. I will proceed the next. If you have doubts, you can type in the chat box. I'm looking. Okay, no doubts. Next is cancel check. नाउ कैंसिल चेक तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ भी भरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर एक लकीर मारोगे और यहाँ पर कैंसिल्ड करके लिखोगे।
ओके, यू डोंट हैव टू साइन ऑल्सो इन द कैंसिल चेक। कुछ डेट वेट कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। सिंपली पुट अक्रॉस लाइक दिस लाइन्स एंड पुट कैंसिल। ना अभी ये क्यों देते हैं? व्हाई डू आई हैव टू गिव अ कैंसिल चेक? बिकॉज वेन सी, मान लीजिए मेरा एक पॉलिसी मैच्योरिटी हो गया, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी अभी रिसेंट में हुआ था भी, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ आपको। मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी हुआ था। अभी उसमें एक फॉर्म देते हैं, उसमें बैंक डिटेल्स सब भरने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो पैसा है वो बैंक में भेजेंगे, राइट? अभी मान लीजिए मैं भर रही हूँ यहाँ पर अमाउंट, आई मीन मेरा अकाउंट नंबर या कुछ, यहाँ पर मेरा जो साथ लिखने का तरीका मेरा एक जैसा है या कुछ भी हो गया, तो रॉन्ग अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। तो इसलिए व्हाट दे डू इज ऑलवेज दे ट्राई टू गेट अ कैंसिल चेक, क्योंकि कैंसिल चेक में यहाँ पे आपका एएफसी कोड, आपका अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल्स ही उनको चाहिए ना ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर कैंसिल चेक नहीं है तो आपको पासबुक का फ्रंट पेज या क्या आपका पासबुक देना पड़ेगा। क्यों? आपके पासबुक के फ्रंट में भी है डिटेल्स रहता है। ओके। मगर लोग प्रिफर, जब आप नए जॉब पे जाते हैं तो भी एचआर जो है, एचआर जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो आपका वो एचआर होते हैं, वो भी आपको क्या करते हैं, कैंसिल चेक मांगते हैं। कभी कभी कोई ऑफिस में सिक्योरिटी रीजन के लिए ब्लैंक चेक मांगते हैं। उसी ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक माने यहाँ पर कैंसिल सब नहीं करोगे, कुछ भी भरे बिना सिर्फ साइन करके आपका चेक मांगेंगे। ये बहुत ही रिस्की है ब्लैंक चेक देना। सो इट इज बेटर टू गिव अ कैंसिल चेक, डोंट गिव ब्लैंक चेक। इट इज वेरी वेरी रिस्की बिकॉज दे कैन फिल एनी अमाउंट ओवर देयर। एंड अगर अमाउंट आप फिल करके, मैंने जैसे बोला, वो डिसऑनर हो गया, आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आपके ऊपर के कार्रवाई हो सकती है, केस हो सकता है। सो ऑलवेज ट्राई एंड नॉट गिव ब्लैंक चेक टू एनीवन। इफ हाँ वो बहुत बड़ा काम है, आपको ब्लैंक चेक देने से ही देंगे, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ फोटो कॉपी ऑफ इट and register it with the police, near police station, saying that मैंने ये कंपनी को ये ब्लैंक चेक दे दिया है in before itself for security reason. If you want, you can do it. It's just a information I came across. You can verify through it. Okay. So now this is a cancel check I was talking about. So you will give this cancel check. वो खुद और एक बार जब ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके चेक पे आपका अकाउंट नंबर आईएफसी कोड सब देख के वो लोग ट्रांसफर कर देंगे, बिना कोई आपका लिखावट सब वो चेक करने की उनको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बराबर आपका हैंड राइटिंग बराबर नहीं हो या कुछ गलत आपने लिख दिया हो, तो that confusion will not happen. So always they ask for cancelled check. वो इंश्योरेंस क्या बोले, हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी हो, they try to ask you a cancelled check. It's a very easy procedure to know your your bank account details. सेल्फ चेक और कुछ पूछना है? ये क्लियर हो गया ब्लैंक चेक एंड कैंसिल चेक? सो ब्लैंक चेक इज ऑल्सो वन, और एक टाइप ऑफ चेक है। मैं कितना 6 और 7 बता दिया आपको, स्टेल चेक बता दिया, सेल्फ चेक बता दिया आपको, और ब्लैंक चेक और दिस वन। सो 7 और 8 हो गया, लगता है 8 चेक्स बता दिया मैंने, करेक्ट? पीडीसी चेक्स भी बताया है आपको, तो ये ब्लैंक चेक 8 है। क्लियर? ब्लैंक चेक में आप कुछ भी नहीं लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर कैंसिल्ड कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे आपका साइन करके दोगे, विच इज वेरी 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 रिस्की। सो इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू वांट टू गिव और नॉट, इट्स अप टू यू। क्लियर? Shall I rub the board? All the checks I have covered. Any doubts in this? Yes, any doubts? Shall I go next? Yes, कुछ डाउट है तो बताइए अभी से। Okay, ma'am. Okay, right. Now let's go to the. Now, what is an IFC code? Also, I will give you few details about it. Indian Financial System Code. Okay? Indian System Financial Code.
Now this, it's an electronic money transfer between bankers. Okay, electronic money transfer between banks, दो बैंक्स के बीच में ये आईएफसी कोड हो तो ही वो इजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो क्या है, रिजर्व बैंक इंडिया यूटिलाइजेस द आईएफसी कोड, और आरबीआई करके आपने बहुत बार सुना होगा, ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब आपको अब्रीवेशन जो भी मैं सिखा रही हूँ, यो सब भी मैं क्वेश्चंस में, जैसे राम जी ने बताया था, राम सर ने बताया था आपको कि आपका एक प्रोजेक्ट जैसा हम बनाने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं, तो आपको ऐसा मैं ये सब मैं पूछ सकती हूँ, आईएफसी, आरबीआई, और जो भी आपको प्रीवियसली भी दिया है। सो please make sure you get to know about all this. This is all basic knowledge, you should be knowing it. So this Reserve Bank of India, it utilizes माने इसका प्रयोग करती है, आईएफएससी कोड का क्यों करती है, क्योंकि मनी जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको मनी ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए होता है। और आपने देखा होगा कि ये जो फर्स्ट फोर कैरेक्टर, इसका जो आईएफसी कोड, अभी मेरे इसमें मैं लिखती हूँ, मेरा आईएफसी इसमें क्या लिखा है मैं लिखती हूँ, DLXB करके लिखा है। उसके बाद में 00 करके 30 लिखा है मेरे बैच में, फिर 254 ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, द फर्स्ट फोर कैरेक्टर, जो फर्स्ट चार कैरेक्टर रहते हैं, कैरेक्टर यानी कि ये जो होते हैं ना, DLXB, जो फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स हैं, वो बैंक का नाम, ब्रांच का जो नेम है ना, ब्रांच का नेम, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रांच का नेम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है तो BOBOB करके रहता है, शायद मुझे इतना ध्यान में नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स ये जो है बैंक का नेम को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो विच इज लास्ट सिक्स 1 2 3 4 5 6, ये जो लास्ट सिक्स है, यहाँ पे मैंने एक जीरो मिस कर दिया है, हाँ, ये जो लास्ट सिक्स है, 1 1 2 3 4 5 6, ये जो है वो आपका ब्रांच, वो ब्रांच कौन सा है, ये जो है सबका अलग रहता है, ये कौन सा ब्रांच का है करके वो आपको सिग्निफाई करता है। सो लास्ट यहाँ पर लिखती हूँ, लास्ट सिक्स डिजिट क्या करता है, सिग्निफाई द ब्रांच। ओके, और जो फिफ्थ, अभी ये एक ही बचा है, ये जो फिफ्थ कैरेक्टर है वो यूजुअली जीरो ही रहता है, ये फिफ्थ कैरेक्टर जो है यूजुअली जीरो ही रहता है। वो उसका क्या मतलब है, तो ये एक स्पेस, उसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है करके बताता है, डिनोट करता है। ओके, सो तो कुल मिला के कितने डिजिट्स हो गए, कितने डिजिट्स हो गए, 11 हो गए ना बच्चों। यहाँ पर कितने हैं, चार हो गए, चार के साथ एक, और यहाँ पर छह, कितना हो गया, 11 हो गए ना। तो कितने होते हैं, 11 कैरेक्टर्स होते हैं आईएफसी कोड में, कितने होते हैं, 11 कैरेक्टर्स, कितना होता है, 11 कैरेक्टर्स। याद रख लीजिए, आईएफसी कोड में 11 कैरेक्टर्स रहते हैं, जो कि फर्स्ट चार जो है अल्फाबेट्स में रहते हैं, जो बैंक का ब्रांच नेम रिप्रेजेंट करता है, नेम। और ये जो लास्ट सिक्स डिजिट्स हैं वो बैंक के, वो क्या है, वो लास्ट सिक्स डिजिट ब्रांच का कोड, वो क्या है, वो हर एक बैंक का अलग अलग रहता है, ये कोड सेम रहता ही नहीं है, कितने भी बैंक आपको देख लो सेम नहीं रहेगा, हर एक का कोड अलग रहेगा। और यहाँ बीच में जो जीरो है वो फिफ्थ कैरेक्टर, यूजुअली इट इज डिनोटिंग द स्पेस, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको डिनोट करने के लिए बीच वाला कैरेक्टर हमेशा जीरो ही रहता है।
तो ऐसे करके आप अपना आईएफसी कोड याद रख सकते हैं कि मेरे बैंक का क्या नाम है, उसका क्या, उन्होंने क्या रखा है, फर्स्ट फोर, फिर लास्ट सिक्स मेरा क्या नंबर है, बीच में तो जीरो ही आएगा। आप भी आपका आईएफसी कोड आज ही जाके देखिएगा। Go and see if your IFC has 11 characters. Go and check if the what is the first four, what is the last six, and what is in the center. Go and check and let me know. All right. So you got to know what is an IFSC code. Clear? Anything else? Any doubts? So ये जो आईएफसी कोड नहीं रहेगा तो कोई भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो है, निफ्ट जो बोलते हैं हम, नेफ्ट जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वी कॉल इट एज नेफ्ट। ओके, वो नहीं, आईएफसी कोड नहीं है तो इट कान बी डन, इट कान बी डन, नो, इट कैन नॉट बी डन, कान बी डन लिख दीजिए। ये नहीं है तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। Cannot take place, cannot be done, anything whatever you want you can write. Clear? Shall I go to the next? Any doubts? Yes, clear. Anjali Soni says it's clear. Okay, now आज एक 5 minutes एक एक्स्ट्रा सेशन लेंगे हम। ओके, तो आपको डिजिट्स, क्योंकि सीमा जी ने और वो दो तीन लोग ने बोला था कि मुझे डिजिट्स जो है वेस्टर्न सिस्टम में नहीं आता है, तो आज हम डिजिट्स भी देख लेंगे। I hope I have given you enough details about the bank, the challan, from the challan to the account, saving account, current account, FD, RD, everything. All that I have given. You have any more doubts, you can still ask me in the group also, you can text me. Okay, let's go to the digits. So whenever you are doing the digits, first what you will do is group the digits. डिजिट यानी एक एक जो नंबर होता है उसको डिजिट करके बोलते हैं, राइट? सो वेन एवर यू सी अ बिग नंबर, उसको देख के डरने का नहीं कि मैं उसको कैसे पढ़ूं करके। तो उसको क्या करना है, पहले पहले हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। सो जस्ट इमेजिन यू हैव अ नंबर इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे करके आपके पास एक नंबर आया है, तो पहले पहले आप उसको ग्रुप करोगे कि ये जो है वंस का है। इंडियन सिस्टम में पहला वाला 3 करके होता है, उसके बाद में दो दो करके ग्रुप करते हैं, करेक्ट? यानी ये जो नंबर ऐसा है उसको कमा से भी ग्रुप कर सकते हैं, इधर कमा, इधर कमा, इधर कमा। ये इंडियन सिस्टम है, क्या है? इंडियन सिस्टम। अगर वेस्टर्न सिस्टम में हो तो यही जो है, यहाँ पर अगर वेस्टर्न सिस्टम में यही नंबर को कैसे करते हैं हम, 3 3 करके करेंगे हम। क्या करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, ग्रुपिंग। तो यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर, 1 2 3 कमा, 1 2 3 कमा, लाइक दिस। सो यू आर ग्रुपिंग, फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज द ग्रुपिंग। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट, हाउ टू डू द ग्रुपिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, राइट? तो वेस्टर्न सिस्टम का कैसे ग्रुपिंग करने का, वेस्टर्न सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम करके भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, so you can say Indian Western also or international, whatever you want. So what you will do is the first is the grouping. मैं ये नंबर थोड़ा यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि आपको यहाँ ऊपर में इजीली लिख सकूं। नाउ मैंने ग्रुपिंग कर दिया इंडियन सिस्टम से, तो इसका मैं एक टैबुलर कॉलम बना रही हूँ, 3 3 यहाँ 2। तो ये जो है वंस में आएगा। अभी वंस में ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, करेक्ट? वंस, टेंस, 100। अब ये जो अगला बॉक्स आएगा वो 1000 का है।
तो ये 1000 हुआ और ये 10,000 हुआ। ओके। और ये कितना, ये क्या हुआ, ये लैक्स हुआ, ये 10 lakhs हुआ। करेक्ट। ये करोड़ हुआ, ये 10 crore। सो एक नंबर आते ही उनको ग्रुप्स में बना देंगे तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। क्लियर। सो फर्स्ट मेक इट एज अ ग्रुप। प्रीति जी वाई करके पूछा है आपने, किस बात के लिए वाई? वाई आर यू आस्किंग मी? वाई, वाई माने क्यों ग्रुपिंग करने का, ऐसा पूछ रहे हो आप? वाई डू यू ग्रुप? यस, बिकॉज वी विल बी एबल टू रीड। अभी ये कौन सा, ये 78 कहाँ पर है, करोड़ में है। तो 78 करोड़, तो कैसे लिखोगे? 78, 78 करोड़। फिर क्या है ये? 14 लाख, 14 lakhs, 14 lakhs। ये कौन सा ग्रुप में है? मैं ब्लैक में बता देती हूँ, ये कौन सा ग्रुप में है? लाख के ग्रुप में है। और ये कौन सा ग्रुप में है? करोड़ के ग्रुप में। तो 78 करोड़ हो गया, ये 14 lakhs हो गया। उसके बाद में ये कौन से ग्रुप में है? 23 कौन से ग्रुप में है? 1000 के ग्रुप में है। 23,000। उसके बाद में 848, 800, 8 कहाँ पे है? 100 में है। और ये 45, 845। अगर चेक में लिख रहे हैं तो उंगली करके लिखोगे। चेक में लिख रहे हैं तो उंगली लिखोगे, अगर नंबर नेम लिखे हो तो उंगली लिखने की जरूरत नहीं। 78 करोड़, 14 lakhs, यहाँ देखिए 78 करोड़, यहाँ 78 करोड़, 14 lakhs, 23,845। अभी क्लियर हो गया प्रीति आपको मैंने क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं बताया मैंने? यस, इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर प्लीज टेल मी, अदरवाइज इफ यू डोंट नो दिस। तो सीमा जी अभी आपको क्लियर हो गया कि कितना भी बड़ा नंबर आए, हम लोग उसको ऐसे ग्रुपिंग करेंगे तो हम लोग, मैं बच्चों को भी वही बोलती हूँ, अगर मैथ्स एग्जाम में आया तो हम ऑलवेज, हम कहाँ पे, ऑलवेज राइट से ऐसे लेफ्ट ग्रुपिंग करना चाहिए हमको, यहाँ से नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यहाँ से ग्रुपिंग करते आने से कोई भी नंबर मिस नहीं होगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो भी यही मेथड में सिखाइए, नंबर नेम्स में कभी भी गलती नहीं करेंगे। वैसे ही अगर आपको, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नम बच्चों को बता रही हूँ, अगर आपको ऐसे दिया गया तो आप क्या करोगे? 78 करोड़, यहाँ पे क्या आ रहा है? 78, तो करोड़ में जाइए, पहले से ही टैबलर कॉलम बना दीजिए, बना के लिख ले 78 करोड़, तो 78 में यहाँ पर लिखूंगी। फिर 14 lakhs, तो 14 lakhs में जाके मुझे 14 लिखना है। 23,000, तो 1000 में मुझे 23 लिखना है। उसके बाद में 800, 100 में कितना आया? 8 आया। फिर 45, सो 45। तो मुझे ये दिया तो भी मैं ये लिख सकती हूँ, ये दिया तो भी मैं ये लिख सकती हूँ, वाइस वर्सा। बोर्ड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो बोर्ड क्लियर बोल दीजिए मुझे, ताकि मैं अपना बोर्ड वैसे एडजस्ट करूंगी। क्लियर। तो बच्चों को भी आप ऐसे सिखाइए कि इसका पहले 1000 lakhs करोड़ का ग्रुपिंग कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर वंस में क्या क्या है? वंस, टेंस और 100 है। 1000 में क्या क्या है? 1000 एंड 10,000 है। लाख में क्या है? लाख और 10 लाख है। करोड़ में क्या है? करोड़ और 10 करोड़। क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द वेस्टर्न सिस्टम। अभी ये हो गया इंडियन सिस्टम। अभी वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है? तो तीन तीन करके होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपको, मैं यहाँ पर नीचे लिख के बताती हूँ, यही नंबर लेंगे और देखेंगे वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है। तो लेट्स, वेस्टर्न सिस्टम में वंस, उसके बाद में सीधा 1000, उसके बाद में मिलियंस आता है। अभी यही नंबर हम उसमें देखें। बोर्ड दिख रहा है? ओके, आई राइट द नंबर एंड देन पुट द कॉलम। मैंने आपको पहले ही बताया था वेस्टर्न सिस्टम में तीन तीन करके होता है। तो यहाँ पर हम
पहले बच्चों को बोलिए कमा डालो, उसके बाद में उसको डिवाइड करो। तो अभी ये क्या हो गया, ये इंडियन सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम में 1000 तक का सेम ही होता है। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000 ओके, और 10,000 तक 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 5 तक इन लोग का सेम ही रहता है। यहाँ पर ही उनका बदलाव आता है। यहाँ पर 100,000 हो जाता है। क्या हो जाता है? 100,000। ये समझ में आया? यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लाख नहीं हो गए, यहाँ पर 100,000 हो गया। उसके बाद में, यहाँ पर मिलियन, यहाँ पर 10 मिलियन, यहाँ पे 100 मिलियन। क्योंकि ये क्या है, मिलियन का है ना, तो 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो अभी आप इजीली नंबर लिख सकते हो। तो आपको क्या लेना है, पहले ये वाला लेना है, पहले ये 3 मिलियन का हम खत्म करेंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर यहाँ पर लिखती हूँ इसका जो नंबर नेम है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 7, ये क्या हुआ, मिलियन है ना, तो आप क्या लिखोगे, 781, 781 मिलियन। मिलियन है तो मिलियन लिखो, बिलियन है तो बिलियन लिखो, यहाँ पर मिलियन है। 781 मिलियन हो गया। उसके बाद में क्या लिखोगे, यहाँ पर आएंगे हम थाउजेंड्स पर, 423,000, 423। सो 423,000, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, 1000 में है ना। ओके, उसके बाद में ये सेम ही रहेगा अंगा पे, 845। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए आप बाद में 845, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इंडियन और वेस्टर्न में दोनों सेम ही आएगा। क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफरेंस, एनी, यू आर एबल टू गेट द डिफरेंस? ओके, यहाँ पे 423,000 आएगा, यहाँ पे यहाँ पर अगर इधर सिर्फ देखे तो 4,23,000 आएगा। अगर सिर्फ यहाँ तक ही हमको नंबर पढ़ना है तो यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पे 400,023 है। Yes. So now what you people have to do is you have to do homework on this. You will take any, I will give you tomorrow more, we will see on like 1 lakh is equal to 100,000, 10 lakh is equal to 1 million, वो सब कैसे करके मैं कंपैरिजन में आपको बताऊंगी, आपको वो भी। और अरब क्या होता है, खरब क्या होता है, वो सब भी हम देखेंगे। अभी समय हो गया है, तो इतना आप होमवर्क क्या करोगे, आपको इधर मिलियन तक का कोई भी नंबर लेके या बिलियन भी लेक्स आपको आता है तो करो। यहाँ पर ऐसे कॉलम्स में ऐसा करके नंबर नेम्स में भी लिख के भेजेंगे आप। क्लियर? और स्पेलिंग जो है, अब बहुत लोग ने 40 का FORTY 40 होता है बेटा, FORTY, 4T नहीं लिखने का। 14 में आप फोर, फोर करके लिख के टीन लिखोगे, मगर जब 40 लिखते हो FORTY 40 लिखोगे। ओके, यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी, we'll discuss on this more. You can do this homework, and I want you all to do one more homework is, you, what to say, read any paragraph, कोई भी पैराग्राफ पढ़ के उस पैराग्राफ का फोटो लेके उसको अपने हिंदी में उसको ट्रांसलेट कीजिए। वो छोटे बच्चों का, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक भी हो सकता है, सेकंड स्टैंडर्ड बुक भी हो सकता है, आपको जो भी आपको कर सकते हो ट्रांसलेट। तो आप एनी स्मॉल पैराग्राफ जिसमें सिर्फ 5 to 6 लाइन्स हो, यू विल टेक अ पैराग्राफ and you will translate it in Hindi. Let me see how many of you are able to do it. So we can take a session on that also. Chalo, okay, take care. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Any doubts you can ask me, unmute and ask. No doubts. Okay. Yes. Thank you.